This is the continuation of this earlier lecture. ठीक है? हाँ. So again, classification or types of industry. The industry may be classified into following 4 types. कौन सी टाइप्स है? सबसे पहले उन्होंने बोला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या है? एक्सट्रैक्टिव शायद आपने वर्ड सुना भी होगा, तो न्यूज़पेपर में सुना होगा, और या तो नहीं सुना तो मैं बताता हूँ क्या है. કોઈ બી વસ્તુને એક્સટ્રેક્ટ કરવો એટલે કોઈ બી વસ્તુમાંથી કાઢીને બનાવવું. સપોઝ આપણે એવું કહીએ કે લાઈક હેવ યુ હર્ડ વર્ડ નિષ્કર્ષ? હેવ યુ હર્ડ ધેટ? આઈ થિંક સો યસ. નહીં, અથવા તો સપોઝ હેવ યુ હર્ડ કે આપણે બોરિંગ કરીએ તો અંદરથી પાણી આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરીએ. તો અંદરથી એક્સટ્રેક્ટ કરીએ એટલે સમથિંગ વિચ ઇઝ ધેર, જે વસ્તુ છે એમાંથી આપણે ઉત્પાદન કરીએ, એમાંથી કાઢીએ, that is known as extract. તો એવી કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જે કોઈ વસ્તુ પદાર્થ છે લાઈક નેચરલી અવેલેબલ છે અને તમે એને ડિરાઈવ કરી રહ્યા છો પ્રોસેસ કરીને, ઓર મે બી સમ સ્ટેપ્સ લઈને. ઓલરાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સટ્રેક્ટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર ધોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આપણે એવું કહી શકીએ સિમ્પલ ભાષામાં કોઈ વસ્તુને ખેંચીને લાવવું. રાઈટ, એક્સટ્રેક્ટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મીન્સ સમથિંગ વિચ કેન બી બ્રોટ ઇન. કઈ વસ્તુ આપણે ખેંચીને બહાર લાવીએ, that is known as extractive industries. Extractive industries are those industries which involve extraction, taking out of something from natural resources. શું મેં તમને કીધું? The resources which are available on the earth. તમે એમાંથી કોઈ વસ્તુ પ્રોસેસ કરીને બહાર કાઢશો, એક્સટ્રેક્ટ કરીને. હું પ્રોસેસ વર્ડ યુઝ નહીં કરું મે બી, બટ એક્સટ્રેક્ટ કરીને, ખેંચીને. ઓલરાઈટ, these industries includes those activities by which various forms of wealth are drawn out or extracted or raised. સપોઝ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ સોનું ક્યાંક જમીનમાંથી મળ્યું વર્ષો જૂની જગ્યા પરથી, પછી ઓઇલ્સ, આપણે રિફાઇનરીઝ ક્યાંથી ઓઇલ્સ કાઢે છે? નીચેથી ક્રૂડ ઓઇલ્સ, એને પ્રોસેસ કરે. પેટ્રોલિયમ, પછી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગેસિયસ, ઇવન સમુદ્રમાં જઈને બી એ લોકો, દરિયામાં જઈને એ લોકો એક્સટ્રેક્ટ કરતા હોય છે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગેસિયસ સબસ્ટન્સીસ. પછી ઓઇલ્સ એક્સટ્રેક્ટ કરે, માઇનિંગ્સ કરે. આપણે જ્યારે પહાડો ઇલાકી હોય, પછી સપોઝ કે અમુક કોયલાની ખાણ હોય અંદર હોય જમીનમાં બી, તો એને શું કરે? માઇનિંગ કરે, ડ્રિલિંગ કરીને એમાંથી બહાર કાઢે. ડ્રિલિંગ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ડ્રિલિંગ? ઓલરાઈટ, for which various forms of wealth are drawn out or extracted or raised from the soil, air, water or from below the surface of earth. हवा में से निकाल सकते हैं, पानी में से निकाल सकते हैं, जमीन से निकाल सकते हैं, जमीन के अंदर से निकाल सकते हैं. ठीक है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड द एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्टेशन एक्सेट्रा. उन्होंने क्या बोला? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या क्या चीज आएगा? हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग करना मतलब ड्रिलिंग करके जो मैंने बताया वो, एग्रीकल्चर करना, फॉरेस्टेशन, ठीक है, जैसे वुड कटिंग और ये सब होता है वो. Such industries require comparatively lower contribution, less assistance of manpower for production. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की है? अगर आप ये इंडस्ट्री से वाकिफ होना चाहते हो, अगर आप ये इंडस्ट्री में उतरना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने बोला है. क्या बोला है? कि यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली दूसरी इंडस्ट्रीज से कम होगी. क्यों कम होगी? आप समझ पा रहे होंगे कि वहां पर मशीन से काम चलता है. ठीक है, माइनिंग करना है, मशीन चाहिए. वुड्स काटने हैं, मशीन चाहिए. इंसान काटेगा तो कब हम काट पाएंगे? बहुत टाइम लगेगा. और आज लाइक इन अवर टुडेज जनरेशन एवरीथिंग इज सो फास्ट. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज अगर आप उसमें जाएंगे तो आपका जो मटेरियल है वो डायरेक्टली यूज हो सकता है या तो कोई प्रोडक्ट के लिए यूज हो सकता है. समझ में आ रहा है? जैसे मैं पेट्रोलियम की बात करूं तो पेट्रोलियम में डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूं पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल में भी बहुत सारी टाइप्स आती है. प्लेन के लिए यूज किया, नॉर्मल व्हीकल्स के लिए यूज किया. पेट्रोल कोई और चीजों में भी काम आता है जो शायद हमें नहीं पता है. जैसे यू वोंट बिलीव कि बहुत सारी चीज का जब सर्विस होता है, सर्विस मतलब ये गाड़ी और उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर लोग केरोसिन डाल के भी आई मीन दे पूरा साफ सफाई करते हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जो कंपनीज के होते हैं, वहां पर पेट्रोल से पूरा उसका मेंटेनेंस होता है. ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
ठीक है, चलो नाउ जेनेटिक इंडस्ट्रीज. जेनेटिक मीन्स व्हाट? બાયોલોજિકલ. શું કહેવાય ને? બાયોલોજિકલ. ઉત્પત્તિને લગતું. વોટ વિલ યુ સે? ઉત્પત્તિને લગતું. ઓલરાઈટ. These industries perform the activities of rearing and breeding of living organisms such as birds, animals and plants. They are engaged in reproducing and multiplying certain species of plants and animals with the objective of earning profit. Nurseries selling plants, cattle breeding farms, poultry farms, dairy farms, growing fish in ponds, commercial kennels, etc. એ શું કહે છે? જેનેટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે શું છે? તમે સાંભળ્યું હશે કે લાઈક કોઈ તબેલો ચલાવી રહ્યા છે તો ઘણી બધી ગાયો ભેંસો રાખી રહ્યા છે. સો દે આર ઓર્ગેનાઇઝિંગ સમથિંગ થ્રુ જેનેટિકલ થિંગ્સ, બાયોલોજિકલ પ્રોસેસ. You and me are made up of, we are the person, but we are made up of biological process, through a biological process. Same way birds, different animals are made from biological process. So what is biological process? Different breeds are involved and then there is a born of different birds, different animals and even we as a human being also. But we are not considered in this. Nursery means what? તમે જોયું છે ઘણા લોકો લાઈક in Vadodara there is also rotary nurseries. So what is that? Different plants ને નાના કુંડામાં એ લોકો વેચતા હોય. What is that? So what they are doing is કે જ્યાં મોટા ઝાડ હોય ત્યાંથી એની કળી લાવી એની અંદર રોપી અને પછી એને વેચે. So if you can understand કે એક ઝાડમાંથી ઘણા બધા ઝાડ થવાના છે. So they have started that business. Same way જ્યારે કોઈ એનિમલ્સને સાચવશે તો એકમાંથી 2, 4 એવી રીતે એનિમલ્સ કરશે. See, look, this is the biological process, how it happens. Because plants are also living organisms. ये આપણે સોશિયલ સાયન્સમાં કદાચ ભણ્યા છીએ, સમાજ વિદ્યામાં, તમને ખ્યાલ હશે. Alright? ચલો. So, now, construction industries. We have done with 2 industries, extractive industries, genetic industries. આ બે ટાઈપના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અવેલેબલ છે. Now we are going with construction industries. Construction થી તમને ખબર પડશે કે like what they are trying to say. They undertake constructions of building, roads, dams, bridges, etc. The unique feature of this industry is that their products cannot be transferred or shifted to the market for sale. बिल्डिंग बना, उसको पहिए में मैं कहीं और लेके जा सकता हूँ? नहीं जा सकता. अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. सो कंस्ट्रक्शन का एक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत लाइक विच इज आई नोटिसिंग, मतलब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, देखो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? बिल्डिंग होगा. घर बना रहे हो तो घर होगा, दूसरे कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स बना रहे हो, कैनल्स बना रहे हो, ठीक है, तो वो सब सारी चीजें होगी. लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैं कहीं जाके नहीं बेच सकता. अगर किसी को भी लेना है तो उससे यहाँ आना पड़ेगा देखने के लिए. सो हर इंडस्ट्रीज के सब अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं और अदर उसके फंक्शनैलिटी अलग होती है. जैसे हमने वहां पर बात किया एक्सट्रैक्टिव में, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम है. लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा तो वहां पर आपको चाहिए लेबर से लेके सब चाहिए आपको, इंजीनियर, एवरीबडी. तो आप समझ पा रहे होंगे कि मशीन तो ठीक है लेकिन मशीन से ज्यादा कंपेरेटिवली आदमी की जरूरत यहाँ पड़ती है. ऐसा होता है कि मशीन लगाया और बिल्डिंग खड़ा हो गया? नहीं होता है. सो हमें ये सब चीज मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि यू हैव टू थिंक लाइक ए बिजनेसमैन. व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट यू हैव टू थिंक लाइक, जैसे आप अकाउंट्स करते थे तब भी आप ऐसे बिजनेसमैन ही सोचते थे, तो यहाँ पर भी आपको यही सोचना है कि मैं अगर बिजनेस शुरू करूंगा तो ये इसके प्रॉन्स है, ये इसके एडवांटेजेस है, ये इसके कॉन्स है, मतलब ये इसके डिसएडवांटेजेस है. ठीक है, चलो. This means they are built, erected or fabricated at the fixed site only. मतलब फिक्स साइट पे ही वो बनाया जाता है. They are constructed and remain at a fixed site only. घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं लोग. These industries use the products of manufacturing industries like cement, steel, etc. as well as of extractive industries like quarries. उन्होंने क्या बोला? माइनिंग करते हैं कोई जगह से. जैसे आपने देखा होगा कि लाइक आप हमारे नेटिव की बात करो, व्हेन वी टॉक अबाउट सौराष्ट्र रीजन, यहाँ पर तो अपन पता है सीमेंट के साथ वो रेती मिक्स करके पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो जो रेती होता है वहां पर क्या होता है, नदी से लोग उठाते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दरियाई मिट्टी मिलती है. तो हर जगह पे वो डिफरेंस आएगा. लेकिन कहने का मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी हमें कोई और इंडस्ट्री की हेल्प चाहिए.
तो आप जो रेती निकाल रहे हो उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं एक्सट्रेक्टिव कहूंगा, क्योंकि आप कोई चीज को निकाल रहे हो, कोई वस्तु ખેંચીને કાઢી રહ્યા છો. ઓલરાઈટ, એ કશે હતું, એ નદીની અંદર હતું, નદીનું થોડું પાણી વહી ગયું, તમે ત્યાંથી લઈને તમે ઉપયોગ કર્યો. ઓલરાઈટ, હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ मैं क्या कह रहा हूं. नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर हर जगह यही दिखता है. क्या है देखते हैं. दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन. कन्वर्जन मतलब ट्रांसफर करना, एक चीज में से किसी और चीज में उसको रूपांतर करना, ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है मतलब जो पूरे फिनिश्ड गुड्स नहीं है उसे फिनिश्ड गुड्स में लेके जाना, उसे मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है. बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी. एग्जांपल, टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर. टिम्बर जो होता है लकड़ी का, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है फर्नीचर के अंदर. कॉटन इनटू क्लोथ्स एंड शुगर केन इनटू शुगर. ठीक है. शिरडी में शुगर बने, गोड़ बने, तो होप यू कैन अंडरस्टैंड कि वो भी एक प्रोसेस कर रहा है, फिनिश गुड्स में लेके जा रहा है. क्लोथ है तो कॉटन चाहिए, कॉटन में से क्या बना, कपड़े बने. तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या है, उसका काम ये है कि जो रॉ मटेरियल मुझे मिलता है उससे कुछ प्रोसेस करके मैं उसे कुछ नया रूप दे दूं. ठीक है. कॉटन नॉर्मल कैसे होता है, लेकिन जब क्लोथ में आ गया तो कुछ अलग बात हो गई उसकी. हाँ या ना. शुगर, तो भाई शुगर कहाँ से आया, शुगर केन से आया. ठीक है, गन्ने से. Generally, the products of extractive industries becomes raw material for manufacturing industries. Example, cotton produced by farms is used by the textile industries. जो पहले बात बताया वो उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया, और यहाँ पर वर्ड यूज किया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. क्या वर्ड यूज किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जो क्लोथिंग में डील करती है. ठीक है. The iron ore produced by mines is used by the iron and steel industries. Iron ore जो कच्चा आयरन होता है वो किस मतलब कौन यूज करता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जैसे टाटा स्टील है तो स्टील कहाँ से लाते हैं, कभी आपने सोचा है, वो माइंस में से लाते हैं. अलग अलग जो जमीन के अंदर जो पदार्थ रहते हैं वहां से वो मिट्टी उठा के उसे प्रोसेस करने के बाद वो स्टील बनाते हैं. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ ओनली. ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज आप जमीन पे देखेंगे तो दिखेगा नहीं ऐसे, अगर होगा तो भी यू हैव टू प्रोसेस दैट थिंग. और ये जो प्रोसेस आप करेंगे और एक नया फॉर्म देंगे उसे मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. हो आप समझ पा रहे होंगे अपन कहाँ जा रहे हैं. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. यहाँ पर उन्होंने और एक बात किया. हमने नॉर्मली 4 टाइप तो देखा. सबसे पहले हमने देखा दैट वाज एक्सट्रैक्टिव, सेकंड हमने देखा दैट वाज जेनेटिक, थर्ड वन वाज कंस्ट्रक्टिव. एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन. एंड फोर्थ वन कौन सा था, फोर्थ वन वाज अवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उन्होंने बोला कि अपने के पास और सारे पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर हम अगर जाएंगे तो उसके अंदर भी दूसरे कैटेगरीज है. ठीक है. कौन से है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली लाइन इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग भी तरह तरह के होते हैं. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नाम बदलूंगा जो चलेगा, नहीं चलेगा. ठीक है. तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री एनालिटिकल मीन्स विश्लेषण करવું. एनालिटिकल એટલે શું, વિશ્લેષણ કરવું. In this type of industry, many types of products are manufactured by analyzing and separating different elements from the same material. In oil refinery, crude oil is processed and separated into petrol, diesel, gasoline, kerosene, lubricating oil. आप समझ पा रहे होंगे कि जो ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल जब वहां से निकालते हैं उसके बाद वही ऑयल को प्रोसेस करने के बाद अलग अलग स्टेजेस पे, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि अलग अलग स्टेजेस पे वो लोग अलग अलग सब्सटेंसेस निकालेंगे. जैसे पेट्रोल निकाल लिया, केरोसिन निकाल लिया. ठीक है. तो एक्चुअली था क्या, एक ही प्रोडक्ट था, उसमें से अलग अलग फॉर्म्स निकाले, अलग अलग केमिकल्स कुछ मिक्स करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया. हो समझ में आ रहा है. तो ये सिंथेटिक है. ठीक है. सिंथेटिक नहीं, आई वुड से एनालिटिकल है. अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री की. इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री 2 or more मटेरियल्स, बोले तो इंग्रेडिएंट्स जो अंदर जाता है, आर कंबाइंड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस to produce a new product. Various chemicals are used to produce paints,
कॉस्मेटिक्स, सोप्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। आप समझ पा रहे होंगे कि मान लो कोई पेंट बनाना है, जैसे अपन एशियन पेंट का सब पेंट्स घर पे लेके आते हैं, तो डू यू थिंक वो कैसे बना होगा? उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यूज किए गए होंगे, तो इट मीन्स कि वहां पर 2 से ज्यादा है तो 2 प्रोडक्ट का मिक्सिंग है, ठीक है। मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज मिक्स करके कुछ बनाया गया और आर्टिफिशियल गुड्स बनता है उसके बाद, ठीक है। तो उसे मैं सिंथेटिक इंडस्ट्री कहूंगा। सिंथेटिक का प्योर मीनिंग क्या होता है? कृत्रिम। सिंथेटिक का प्योर मीनिंग है कृत्रिम, विच इज नॉट नेचुरल, आई वुड से। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस करना मतलब आप समझ पाएंगे कि कोई स्टेप्स लेते होंगे और उसके बाद कुछ रिजल्ट मिलता होगा, पढ़ते हैं। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग स्टेजेस पे, आज ये स्टेज पे प्रोडक्शन है, कल वो दूसरे स्टेज पे जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, तीसरे स्टेज पे जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, चौथे स्टेज पे जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। तो ये जो होता है उसे हम कहेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड फाइनल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कॉटन डायरेक्टली सीधा लगाया तो कॉटन बन जाएगा? नहीं। कॉटन आप लेके आए, उसे वीविंग किया, उसे स्प्रेड किया, उसे बाइंड किया, धागे के फॉर्म में लेके आए, फिर उसे वीविंग किया, मतलब मशीन के अंदर डाल के, फिर आपने उसका एक कपड़ा बनाया, फिर उसके कलर दिया, एंड तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट यूज करने लायक बनता है। फिर आप उसमें से कुछ भी चीज बना सकते हो, दैट इज डिफरेंट है। पर एक जो कापड़ भी बनाना, ठीक है, वो जो कापड़ का रोल बनाना, इट इज नॉट ए इजी थिंग, उसके लिए एक प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना? असेंबली लाइन, तो प्रोसेस में मैं ये भी डाल सकता हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी डाल सकता हूँ, डेफिनेटली डाल सकता हूँ, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है दवाई, लेकिन कुछ प्रोसेस करके बनाता है। आया ना? यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन आप लिख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब असेंबली लाइन, असेंबली लाइन मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस ए न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, एग्जांपल कार, स्कूटर, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो असेंबली लाइन मतलब दो चीज को, जैसे ऊपर भी 2 चीज को जोड़ना था, लेकिन 2 चीज को साथ में आप लाते हो, ठीक है, 2 और मोर मटेरियल्स को लाते हो एंड फिर कंबाइंड प्रोडक्ट बनाते हो। लेकिन आप मोबाइल की बात करो, कंप्यूटर की बात करो, तो स्क्रीन उसका अलग है, उसका हार्ड डिस्क अलग है, उसका बैटरी अलग है। आप समझ पा रहे होंगे? तो बैटरी है मतलब कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक या तो उससे जुड़ा हुआ है, बैटरी सेक्टर से, ठीक है। स्क्रीन की मैं बात करूं तो रिसर्च के ऊपर जुड़ा हुआ है, कि उसके ऊपर तुम रिसर्च कैसे करते हो। सबसे पहले एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, अभी सुपर एलईडी आया, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आने लगा फोन में। ये सब क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे हम फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो मैं चाहे एचपी का लैपटॉप ले लूं या लेनोवो का ले लूं, ठीक है। अब मुझे मान लो इंटेल का, मतलब मुझे इंटेल का प्रोसेसर चाहिए i5, तो मैं कहां से असेंबल कर रहा हूं उसे? इंटेल से लेके मेरी कंपनी के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डाल रहा हूं। तो उसके लिए हो सकता है कि मैंने उनके साथ टाइप किया हो, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हो, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज है वो मैं मेरे प्रोडक्ट में उपयोग करता हूं, तो मेरे प्रोडक्ट का डिमांड शायद बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करके ज्वाइन हो। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लो कि कैमरा में सोनी बहुत अच्छा था, अभी भी है, लेकिन अभी इतना नहीं है, मतलब बहुत सारी कंपटीशन बढ़ गया, तो वी आर, इट इज वेरी मच हार्ड फॉर अस टू डिसाइड कि कौन सा कैमरा अच्छा है। सब अच्छा ही रहता है, लेकिन सोनी का एक बार नाम था, तो बहुत सारी कंपनी सोनी के पास से टाइप करती थी कि हमें कैमरा आपका फिट करना है हमारे फोन, बाकी सब हमारा रहेगा लेकिन कैमरा आपका चाहिए। बैटरी तो क्या, बैटरी किसी और के पास से ले जो बैटरी में अच्छा है। तो ये जो सब चीज आप साथ में लेके इकट्ठा करके कुछ बनाते हो, दैट इज एसेट। यहाँ पर आपने कुछ प्रोसेस नहीं किया। जब मैंने एशियन पेंट की बात की तो वहां पर कलर बनाने के लिए आपने 2 चीज को ज्वाइंट किया, प्रोसेस करने के बाद तीसरा चीज है। यहाँ पर आपने प्रोसेस नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ आपने ज्वाइंट किया, सब चीज को असेंबल करके जोड़ के आपने एक नया प्रोडक्ट खड़ा कर दिया। समझ में आया? पक्का? चलो, तो ये सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं। इसके बाद अगला सेशन लेंगे जो होगा अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, टिल देन रेगुलर पढ़ते रहना, ठीक है। ये ना हो कि मैं चलता ही जा रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है सबको आ ही रहा है। Nobody is asking me doubts. I don't know why. And अभी भी मैं बता रहा हूँ, feel free to message me कहीं पर भी डाउट जा रहा है तो, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो ये ध्यान में रखो एंड बस, बाकी अगला सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।